Now come to the question number 101. Question is, we have log base 10 a is equal to p and log base 10 b is equal to q. So we have to find out the value of log base 10 a to the power p into b to the power q. Very easy question. Here we use the property that we can write it as log base 10 a to the power p plus log base 10 b to the power q. Now again use the property of log. p कहाँ आ जाएगा, आउटसाइड आ जाएगा, तो p log base 10 a plus q log base 10 b and the value of log base 10 a is p. So ये क्या बन जाएगा, p स्क्वायर प्लस q इंटू q क्या बन जाएगा, q स्क्वायर. तो विच ऑप्शन इज ट्रू? ऑप्शन C is true. Here we use two result of log. First is log m into n is equal to log m plus log n. Second result is log m to the power n is equal to n log m. Now come to the question number 102. Question 102 is the value of log base e2. So here we use the formula of log base e 1 plus x is equal to x minus x square upon 2 plus x cube upon 3 minus x to the power 4 upon 4. Now put x is equal to 1 here. So we will get log base e 1 plus 1 will become 2 and right hand side will become 1 minus 1 by 2 plus 1 by 3 minus 1 by 4 and so on. So which option is true? Option C is true. Now come to the question number 103. This is the question of geometric progression where we have to find the sum of infinite series and our series is 1 minus 1 by 2 plus 1 by 2 का square minus 1 by 2 का cube plus dot dot dot. Here first term is 1 and common ratio r is equal to, how we will find r? R is second term divided by first term. So second term is half and first term is 1. So r is minus half. So the sum of infinite series will be a upon 1 minus r in geometric progression. So a is 1 and r is minus half. तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का हाफ विच इज इक्वल टू 1 माइनस ये क्या बन जाएगा 3/2. 2 ऊपर पहुँच जाएगा तो 2 upon 3. So the sum of this infinite series will be 2/3. So option C is true. Now come to the question number 104. This is the question of matrix. We have given two equal matrix. First one is 2a plus b, a minus 2b, 5c minus d, 4c plus 3d. एंड ये 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स किसके इक्वल है, 4 माइनस 3 11 24. दो मैट्रिक्स के इक्वल होने की कंडीशन होती है कि ईच एलिमेंट भी उनका क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए और जो ऑर्डर है मैट्रिक्स का वो भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए. तो इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है और इसका भी ऑर्डर क्या है, 2 क्रॉस 2 है. तो ऑर्डर तो सेम है तो ईच एलिमेंट भी क्या होगा, सेम होगा करस्पॉन्डिंग. तो 2a प्लस बी किसके इक्वल हो जाएगा, 4 के. ओके, a माइनस 2b किसके इक्वल हो जाएगा, -3 के. सिमिलरली 5c माइनस डी किसके इक्वल हो जाएगा, 11 के. एंड 4c प्लस 3d किसके इक्वल हो जाएगा, 24 के. ओके, नाउ
this is the two equation. We will solve this simultaneously, so we will get the value of a, b, c and d. we have to only find out the value of a and b, so इसको हमें सॉल्व करने की नीड नहीं है। तो हम यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन को क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 2 2 ज़ा 4 और ये क्या बन जाएगा -6। अब दोनों को सब्ट्रैक्ट करो तो ये प्लस ये प्लस, तो 2a कैंसिल आउट, ये क्या आ गया 5b इज इक्वल टू 10। सो b की वैल्यू क्या आ गई 2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ b इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 1, सो वी विल गेट 2a प्लस 2 इज इक्वल टू 4। सो 2a इज इक्वल टू 2, 2a इज इक्वल टू 2, a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। तो a की वैल्यू 1 आ जाएगी और b की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 आ जाएगी। तो मैं देखो ऑप्शन कौन सा ट्रू है, तो नो ऑप्शन इज ट्रू। तो दिस इम्प्लाइज ऑप्शन E is true. Okay, now come to the question number 105. We have two matrix A and B. A is equal to 1 0 0 2 and B matrix is 3 0 0 4. ये दोनों डायगोनल मैट्रिक्स हैं, बिकॉज ओनली एलिमेंट्स कहाँ पर है डायगोनल में। तो डायगोनल मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी होती है कि ये आपस में मल्टीप्लिकेशन के साथ भी कम्यूट करेगी और एडिशन में तो मैट्रिक्स कम्यूट करती है। कम्यूट का मतलब है कि a इंटू बी इज इक्वल टू बी ए एंड a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। तो देख लो यहाँ पे a इंटू बी आप फाइंड करो, क्या आएगा 1 0 0 2 3 0 0 4। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1 इंटू 3 3, 1 इंटू 4 हो जाएगा यहाँ पे सेकंड में, तो ये 4 हो जाएगा। 0 इंटू दिस 2 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। सॉरी, ये सेकंड एलिमेंट क्या बनेगा 1 इंटू 0 0 0 ही बनेगा। यहाँ पे क्या आएगा 0 आएगा। अब यहाँ पे देखो लास्ट एलिमेंट 0 इंटू दिस 0, 2 इंटू 4 क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो ये ए बी आ जाएगा। नाउ वी विल फाइंड बी ए। तो बी ए विल बी 3 0 0 4 एंड 1 0 0 2। तो बी ए विल बी 3 इंटू 1 3, 3 इंटू 0 0 इंटू 2 0, 0 इंटू 1 4 इंटू 0 0, 0 इंटू 0 0, 4 इंटू 2 8। तो देखो ये दोनों क्या आ गए इक्वल आ गए। तो ए बी इज इक्वल टू क्या आ गया बी ए आ गया। ओके, एंड a प्लस बी इज इक्वल टू फाइंड करो। a प्लस बी क्या आएगा यहाँ पे ऐड कर दो तो 3 1 4 0 0 6 एंड b प्लस ए बी क्या आएगा 4 0 0 6। तो याद रखना कि ये आपको करने की भी नीड नहीं है एग्ज़ाम में। जब भी आपको ये गिवन हो कि ये डायगोनल मैट्रिक्स हैं तो क्या होगा, वो मल्टीप्लिकेशन में भी कम्यूट करेगा और एडिशन में भी क्या करेगा कम्यूट करेगा। इट मीन्स ए बी इज इक्वल टू बी ए होगा और ए प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए होगा। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 106। Given that if A and B are invertible matrices of same order, then which of the following is true? So हमें ये तो रिजल्ट ही पता है कि A B का इन्वर्स किसके इक्वल होता है B इन्वर्स इंटू A इन्वर्स। ठीक है, तो देख लो ये कौन सा ऑप्शन ट्रू है। तो ऑप्शन B इज ट्रू। अगर A B क्या है A and B मैट्रिक्स आर कम्यूटेटिव, देन ए बी का इन्वर्स इज इक्वल टू ए इन्वर्स बी इन्वर्स हम लिख सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं लिख सकते। तो इसमें कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, ओनली बी ऑप्शन। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन नंबर 107 इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स एंड सेकेंड स्टेटमेंट is A is a skew symmetric matrix if A dash is not equal to minus of A, and third statement inverse of the square matrix A if exist is unique। तो इसको देखते हैं 107 में कि कौन से करेक्ट हैं और कौन से
करेक्ट नहीं है। तो 107 का पहला स्टेटमेंट क्या है, ये तो डेफिनेशन ही है कि अगर ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो जाए तो वो कैसी मैट्रिक्स हो जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। क्लियर है। और अगर ए का ट्रांसपोज किसके इक्वल हो जाए, माइनस ऑफ ए के इक्वल हो जाए तो वो कैसी मैट्रिक्स हो जाती है, स्क्यू सिमेट्रिक हो जाती है। बट यहाँ पे क्या गिवन है आपको, ए ट्रांसपोज नॉट इक्वल टू माइनस ए, और वो क्या कह रहा है कि वो स्क्यू सिमेट्रिक है। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। एंड हमें पता है किसी भी मैट्रिक्स का जो इन्वर्स होता है वो अगर एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कैसा होता है, यूनिक होता है। तो कौन सा ऑप्शन नॉट करेक्ट है, ओनली ऑप्शन बी। और हमसे यही पूछा गया है, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्ट। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108। तो क्वेश्चन नंबर 108 इज द नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3x3 विथ ईच एंट्री 1 और 2। तो यहाँ पर देखो 3x3 की एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 एंड A33। ओके। नाउ अब हमारे पास ईच एंट्री को भरने की चॉइसेस कितनी है, आइदर 1 और 2। तो क्या हो जाएगा, इसके लिए हमारे पास कितनी चॉइसेस आ गई, 2 चॉइसेस। इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2 चॉइसेस, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2, इसके लिए भी 2 और इसके लिए भी 2। तो टोटल कितनी चॉइसेस बन जाएंगी, 2 की पावर 9 विच इज इक्वल टू 5, 1, 2। ओके। सो ऑप्शन C is true. Now come to the question number 109. Question number 109 is, if the area of the triangle width is 9 square units, then the value of k is। तो एरिया कैसे निकालते हैं, 1/2 एंड डिटर्मिनेंट ऑफ -3 एंड क्या 3 एंड 0। यहाँ पे x के कोऑर्डिनेट लिख लो, यहाँ पे y के कोऑर्डिनेट्स लिख लो, और यहाँ पे क्या लिख लो, 1, 1, 1। और ये किसके इक्वल गिवन है हमें, 9 स्क्वायर यूनिट्स के। ओके। तो ये आ जाएगा हाफ। इसको कॉलम 2 के करस्पॉन्डिंग अगर हम ओपन करें तो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ओके। तो क्या आ जाएगा, पहला -0, तो ये हट गया, ये हट गया, और 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी में भी होगा तो वो 0 आएगा, तो इनकी एंट्रीज लिखने की भी नीड नहीं है। फिर प्लस का 0, तो इसकी भी एंट्रीज लिखने की नीड नहीं है। फिर क्या आ जाएगा, माइनस का k, और यहाँ पे ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3 एंड माइनस का ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, नहीं ये माइनस तो उसके लिए है, ये माइनस का ही 3 रहेगा। ओके। सो ये क्या बन जाएगा, 9। तो ये हो जाएगा हाफ, और माइनस माइनस प्लस का 6k इज इक्वल टू 9। तो ये आ जाएगा 2 3 ज़ा 3k इज इक्वल टू 9। तो k इज इक्वल टू 3। तो विच ऑप्शन इज ट्रू, ऑप्शन ए इज ट्रू। ओके। ये जो यहाँ पे प्लस माइनस साइन लगाए हैं वो मैंने इनको ओपन करने के टाइम के लिए लगाए हैं, तो आप इनको हटा भी सकते हो। क्लियर है, वो आपको डायरेक्ट अगर क्लियर होगा तो आप समझ जाओगे इसको, आप इनको यहाँ से रिमूव कर सकते हो। अब देखोगे तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये जब इसके थ्रू ओपन करोगे तो इसका मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा, -3, और यहाँ से भी क्या आएगा, -3। तो -3 क्या हो जाएगा, माइनस का 6, और माइनस का 6 इंटू माइनस का k इज इक्वल टू 6k। ओके। तो k की वैल्यू क्या आ गई, 3 आ गई। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 110। तो क्वेश्चन नंबर 110 इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, डिटर्मिनेंट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो ऑप्शन ए इज रॉन्ग, बिकॉज डिटर्मिनेंट कोई मैट्रिक्स नहीं होता, वो एक क्या आता है, नंबर आता है। क्या आता है, एक नंबर होता है। ठीक है। ऑप्शन बी चेक करते हैं, डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएटेड विथ
एनी मैट्रिक्स, तो नहीं, एनी मैट्रिक्स के लिए हम डिटर्मिनेंट नहीं फाइंड कर सकते। डिटर्मिनेंट केवल किससे एसोसिएट होता है, स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए। तो यहाँ एनी है तो ये एनी नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन ट्रू हो जाएगा, सी हो जाएगा। डिटर्मिनेंट इज अ नंबर एसोसिएट विथ अ स्क्वायर मैट्रिक्स, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। तो ये 110 का कौन सा ऑप्शन ट्रू है, ऑप्शन सी इज ट्रू। तो याद रखना कि डिटर्मिनेंट हमेशा किसका निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलेगा। तो अगर डिटर्मिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल रहा है, इट मीन्स जो इन्वर्स भी निकलेगा वो हमेशा कैसी मैट्रिक्स का निकलेगा, स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकलेगा। क्लियर है।